Good afternoon, everyone. Let's start with the next anthropological theory, historical particularism. Now, before proceeding on, let's be clear about what we are looking at. So, the very concept of anthropological theory, it looks at how culture evolved. So, it answers this very question. एंड अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको सारी जो एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज हैं उनके बारे में एक ब्रॉडर आइडिया हो जाएगी कि असल में विच विच टनल वी आर गोइंग इनटू. Now, when we talk about cultural evolution, there is a separate thing, like the biological evolution thing. Now, when we compare both of them, we have evidence for biological evolution, like how our primate stock proliferated after KPG extinction event, then how our lineage split from chimpanzees around 6 to 7 million years ago, then how the journey of modern Homo sapiens started with the first hominin Australopithecines and finally culminated in modern Homo sapiens. So ये सब तो biological evolution की journey है, and we have evidences plus the chronological account. Now, culture is an intangible thing. हमें उसके बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं कि कैसे कल्चर प्रोपेगेट हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ. क्योंकि जो मॉडर्न हम कल्चर देख रहे हैं तो शुरू में लाइक इन पेलियोलिथिक टाइम या इन द टाइम्स ऑफ होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ये सेम कल्चर नहीं था. तो culture did evolve and did evolve in a specific way. That's how our survival was ensured. पर यही क्वेश्चन जो है कि आखिर इवॉल्व हुआ कैसे. नाउ दैट becomes very difficult, and that's why we have so many theories. Now, the first attempt to know how to guess at how culture evolved, it was made by classical evolutionism. The second attempt was made by Franz Boas in historical particularism. Now, this theory says that to answer the question how culture evolved, there are two separate elements, separate but interrelated elements, history and particular. Now, history means if you want to know how culture evolved, first you should stop making generalization. You should stop looking for global culture, global cultural evolution. You should stop looking at similarity, uniformity there. हर कल्चर जो है इसकी एक सेपरेट हिस्ट्री है, सेपरेट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं, और उसी उसी में आंसर है उस पर्टिकुलर कल्चर के. सो टू नो अबाउट द कल्चरल एवोल्यूशन थिंग, फर्स्ट वी हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट विच कल्चर वी आर टॉकिंग. फिर the answers, the key, they lie in its history. And now history is a broader term. इसी हिस्ट्री में दो तीन चीजें हैं, लाइक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं, देन ज्योग्राफी है, बिकॉज कोई कोई कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी न किसी ज्योग्राफी पे होगा, एंड फाइनली पैटर्न्स ऑफ डिफ्यूजन. यानी कुछ टाइम तक वो अगर कल्चर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी पे एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट माइट हैव लिव्ड विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस. सो इंटरेक्शन की वजह से कल्चरल एलिमेंट भी डिफ्यूज हुए होंगे. सो इस तरह से दैट्स हाउ वी अराइव एट एनी पर्टिकुलर कल्चर. इन शॉर्ट, first, no generalization should be made, no global culture. The answer to how culture evolved, it lies in its own context, in its own history. Then the second thing that distinguishes historical particularism from classical evolutionism is that वो जो armchair anthropologists थे, they did not had the first hand data. So most of their observations, they were drawn from second hand data. किसी के memoirs हैं, travel accounts हैं, या ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, कोई एथनोग्राफिक अकाउंट्स हैं, उन सब से उन्होंने क्रॉस कंपैरिजन करके कंपैरेटिव मेथड से दे अराइव एट दिस इनफर्ड ऑब्जर्वेशन कि इस तरह से कल्चर इवॉल्व होते हैं, विच दे मेड जनरलाइजेशन ऑफ कि यूनिवर्सल स्टेजेस है, पर्टिकुलर स्टेजेस हैं जिसके जिसके थ्रू कल्चर इवॉल्व होता है. नाउ फ्रांस बोअस फर्स्ट ही रिफ्यूटेड दिस आर्गुमेंट कि कल्चर जो है एक यूनिवर्सल हो सकता है और यूनिवर्सल स्टेजेस भी हो सकती है. देन सेकंड, he did not rely on that second hand data. He inducted this scientific rigor and humanistic sensitivity. In other words, he brought into account looking at culture while studying them, the first hand data, which is the field based research. So एक ये चीज है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म से. एंड सेकंड चीज जो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, कल्चरल रिलेटिविज्म.
नाउ कल्चरल रिलेटिविज्म एंड हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म दोनों ही सेम है, बस फर्क ये है कि आप किस चीज को देख रहे हैं, आप प्रेजेंट सोसाइटी को देख रहे हैं या उसके हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को देख रहे हैं. सो व्हेन यू लुक एट एनी कल्चर हिस्टोरिकली, then historical particularism, and when you look at the same culture in present time, then cultural relativism. And both of them, they mean the same thing, that every culture is unique, and its elements, its practices, its belief, its knowledge should be seen in that way. Now the core tenets. First, every culture has its own history. जो शुरू में इंट्रोडक्शन में आपको बताई दिया that ये जो fixed sequences हैं, which was given by armchair anthropologist, classical evolutionism, कि जो society जो है, it goes through stages, savagery, barbarism and civilization, और ये जो sequence है, it is universal, कि जितने भी ग्लोबल कल्चर हैं सब में यही चीज होती है. सो बोअज उसने इस चीज को नकार दिया. बोअज के अकॉर्डिंग हर एक सोसाइटी जो है it is a product of its geography and history. Now when I say product of geography, so हर एक कल्चर जो होता है किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे होता है. Now that piece of land will have its own topography, elevation, longitudinal and latitudinal extent, और उन सब की वजह से उस उस ज्योग्राफी का पर्टिकुलर क्लाइमेट होगा, और उस क्लाइमेट के बेसिस पे ही जो बेसिक कल्चरल एलिमेंट्स हैं, लाइक क्लोथिंग है, फूड प्रैक्टिसेस है, फोक सॉन्ग्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, देन अडेप्टिव प्रैक्टिसेस हैं, वो सब जो है वो उसी ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है. बिकॉज कल्चर है क्या? कल्चर वही नॉलेज है. आपको अगर जो टाइलर की डेफिनेशन याद हो, सो कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल ऑफ नॉलेज, बिलीफ एंड वेरियस प्रैक्टिसेस. सो यहाँ भी ये सब जो है ये नॉलेज, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ही है. सो जो अल्टीमेटली एम जो है, चाहे वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का हो चाहे कल्चरल इवोल्यूशन का, दोनों का अल्टीमेट एम इज सर्वाइवल. सो जिस भी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं वहां भी तो उनकी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट स्पेसिफिक चेंजेस होंगे, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ सिस्टम होगा, एंड दैट्स व्हाट दैट द लोकल कंडीशन इज. देन द सेकंड एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी. ज्योग्राफी डिस्कस कर लिया. नाउ हिस्ट्री. तो हिस्ट्री के अंदर दो चीजें प्लस. फर्स्ट है हिस्टोरिकल इवेंट्स. सो चाहे अच्छे इवेंट हो चाहे एक्सीडेंट हो, जितने भी हैं वो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं उसको शेप करते हैं. एंड देन द नेक्स्ट थिंग, डिफ्यूजन और इंटरैक्शन. सो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी पे एक कल्चर अगर बहुत टाइम से रह रहा है, देन इंटरैक्शन होंगे. इंटरैक्शन है तो कल्चरल एलिमेंट जो हैं वो भी डिफ्यूज होंगे. सो ये बेसिक टेनेट है. सेकंड, कल्चरल रिलेटिविज्म. नाउ कल्चरल रिलेटिविज्म मीन्स कि हर कल्चर जो है इट इज रिलेटिव, उसका कंटेक्स्ट जो है इट इज रिलेटिव. यानी अगर जैसे हम बात करें जो कोल्ड क्लाइमेट में जो फूड प्रैक्टिसेस हैं एंड हॉट क्लाइमेट में जो फूड प्रैक्टिसेस हैं, अगर इनको कंपेयर करें देन वी माइट अराइव एट सम क्रॉस रोड्स. क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में जहाँ पे ठंड है तो वहाँ पे ज़्यादातर डाइट जो है वो एनिमल प्रोटीन से आती है. फिर हॉट क्लाइमेट की बात करें, सो व्हेन इट इज ऑलरेडी हॉट, सो उस वहाँ पे एनिमल प्रोटीन की इतनी ज़रूरत है नहीं है, वेजिटेबल बेस्ड डाइट्स हो सकती है. और इवन लेस फूड इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, हाई हीट. सो लेस फूड, मोर लिक्विड, मोर फ्लूइड. ना अगर इन दोनों को देखें तो जो किसी भी पर्टिकुलर कल्चर के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है. सो ऐसे में हम नहीं कह सकते कि कोल्ड क्लाइमेट जो है इट इज बैड बिकॉज दे ईट एनिमल प्रोटीन, या फिर हॉट क्लाइमेट जो है इट इज गुड बिकॉज दे आर मोर फ्लूइड बेस्ड. दोनों के जो कल्चर्स हैं वो डिपेंड करते हैं पर्टिकुलर ज्योग्राफी पे. फिर यही सेकंड एलिमेंट जो है इसमें अगर ले लें क्लोथिंग का, सो क्लोथिंग के अंदर भी यहाँ पे डिफरेंसेस हैं. जो कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पे जो जितने भी क्लोथिंग होगी वो हैवी होगी, वुलन या फरी बेस्ड. और यही अगर हॉट क्लाइमेट की बात करें, सो अभी प्रेजेंट टाइम में सिर्फ जो है अपर बॉडी कवर करने लगे, बाकी पहले के टाइम पे तो
जो ट्रॉपिकल कंट्रीज के लोग जितने भी हैं ट्रॉपिकल प्लेसेस के, दे यूज टू स्टे हाफ नेकेड, क्योंकि हॉट क्लाइमेट में ज़्यादा कपड़े पहनने का कोई सेंस भी नहीं है, और पहनने भी है तो मोस्टली कॉटन एंड कोअर्स। सो यहाँ भी अगर आप देखें दोनों में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। सो ये दो सिंपल एग्जाम्पल से जो बात ये कही है कि हर कल्चर की जो भी प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ दो चीजें बताई है, बट अ कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल ऑफ नॉलेज, हैबिट्स, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे जो कुछ भी है, जितनी भी प्रैक्टिसेस जो हैं, जितने भी कल्चरल एलिमेंट्स हैं दैट मेक अप अ कल्चर, वो सब जो है दे they are relevant to their particular culture, and their culture, it is specific to their history and geography. So जिस भी कल्चर के जो भी एलिमेंट हैं, we cannot question them because uh, from others perspective they might not seem justified, लेकिन उनके कल्चर में they may serve a meaning, they may be helpful in their survival, in their adaptation. जैसे बोअज ने यहाँ पे किया कि हर कल्चर के जो है कुछ कल्चरल एलिमेंट्स लाइक टोटमिज्म, रिचुअल्स, टाबूज। सो अब वो जो दो आउटसाइडर के लिए वो चीजें जो है इरेशनल, बैकवर्ड दिख सकती है, बट दे आर नॉट। दे मे सर्व सम पर्पस, they may serve some meanings to their own specific cultural context. Now the next tenet, empirical field work. So यहाँ पे Franz Boas was the first anthropologist to introduce field-based research, कि अब सिर्फ second hand data study करके नहीं, but अब live among the people, study them. That's called participant observation. By learning their language, their custom, by recording their myths, kinship patterns, rituals, practices, elements in ethnographic account, and that's how we can have a close hand observation of what really happens rather than what was written by others. So इस तरह से जो biases हैं, even biases जो हैं, even जो participant observation में या फिर सर्वे के अंदर भी biases हो सकते हैं, फील्ड वर्क में भी biases हो सकते हैं, बट वो biases उतने नहीं होंगे जितने एक सेकेंड हैंड डेटा किसी ट्रेवलॉग में है या किसी और के एथनोग्राफिक अकाउंट से है. And this term he was called salvage ethnography. So यहाँ पे जितनी भी communities हैं, especially historically disadvantaged and those that are threatened by colonization, threatened by any wave of industrialization and modernization, उन सब के बारे में स्टडी करके to present the reality before the world, and that's what salvage and ethnography. सो यहाँ पे आप दो चीजें जो है याद रखिए कि फर्स्ट यहाँ पे फ्रांस बोअज ही इंट्रोड्यूस फील्ड बेस्ड रिसर्च, दैट्स पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एंड देन ही आल्सो एनकरेज सॉल्वेज एथनोग्राफी कि जितने भी डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उन सब के बारे में भी उनका जो रियल अकाउंट जो है वो लोगों के सामने लाया जाए. But the next tenet, rejection of unilinear and ethnocentric evolution. सो यूनिलीनियर जानते हैं आप, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म में या आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि सोसाइटीज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड दे प्रोग्रेस थ्रू सिमिलर स्टेजेस, सैवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, और उन सब पे जो पिनिकल पे है, जो टॉप पे है, इट इज वेस्टर्न सिविलाइजेशन. सो यहाँ पे फ्रेंच बोअज ही रिजेक्टेड दिस सिस्टम कि ऐसा नहीं है, एंड जितने भी यूरोसेंट्रिक बायसेस हैं, जो वेस्टर्न सेंट्रिक सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सेंट्रिक नोशन है, इट शुड बी रिफ्यूटेड, क्योंकि हर कल्चर का अपना एक तरीका है, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक. कोई सिंगल पाथ या कह सकते हैं सिंगल जो ट्राई ऑफ स्टेजेस जो हैं, इट कैन नॉट ट्राई ऑफ स्टेजेस, it cannot delineate a generalization about the culture everywhere. Indian culture, African culture, Nigerian culture, Alaskan culture, Korean culture, सबके अलग अलग तरीके. Where he said culture, language and biology, they are interdependent
variable, but they do not evolve together in the same direction. Yes. So यहाँ पे simple thing, biology and culture both evolve differently. So मतलब इसका यही है कि यहाँ पे जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, अल्टीमेट पर्पस दोनों का सेम है, सर्वाइवल. बट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है दे इंडिविजुअल स्पेसिफिक है एंड दे आर डिटर्मिनिस्टिक. मीन्स बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होंगे ही, लेकिन जो कल्चरल इवोल्यूशन है, सुनो, दे डू नॉट प्रिसीड द बायोलॉजिकल वन. यानी in simple, when you are facing a threat, any individual, any community, any group, if they are facing the threat, now they will not care about the other cultural element. First they will try to ensure the survival. So in इसी तरीके से when somebody is sick, physically ill, so he will try to get cured rather than learning a new language, or rather than accustoming to a new cultural practice. So यही मतलब था फ्रेंच बोआज का कि even though biological and culture both are independent variable, but they do not evolve in the same direction. And finally, cultural differences are there, क्योंकि जो अभी आपको बताया हॉट एंड कोल्ड का, कि हर जगह कल्चरल डिफरेंसेस रहेंगे, प्रैक्टिसेस जो है वेरिंग रहेगी, टोटम्स अलग रहेंगे, कहीं पे आपको सुपरस्टिशन भी मिलेंगे, बट दे डू नॉट शो दैट दे आर इंफीरियर. rather they are just, different expressions, different historical and environmental expressions. फिर बात करते हैं Bayesian methods and innovation. So first is inductive approach. Inductive approach means data first and theory later. So क्योंकि जो क्लासिकल एवोल्यूशन जो थे, सो उन्होंने जो सेकेंड हैंड डेटा जो है उनके बेसिस पे दे अराइव एट द कंक्लूजन. बट यहाँ पे फ्रेंच बोअर्स ने कहा कि थियराइजिंग बाद में होगी, फर्स्ट कलेक्ट डेटा अबाउट एनी पर्टिकुलर कल्चर, जिस भी कल्चर की आप स्टडी कर रहे हैं. So he argued anthropologists to engage in the field work and collect all cultural data. Then stay with them, observe real life practices and experience, integrate all those experiences into the ethnographic account, and then develop theories on the basis of that collected evidence. So that's what inductive reasoning is. Inductive reasoning is to bottom up approach, or to live among people, then collect data and then arrive at the theory. So that's what inductive reasoning or inductive approach is. Then he also gave the four field approach, which is about the holistic vision of anthropology. जो चार सब फील्ड आज हम देखते हैं, so वो जो है this division, this holistic and comprehensive study, it has started with this four field division provided by Boas. So four fields are cultural anthropology, study of social customs; physical anthropology, about biological variation, genetics and evolution; linguistic, about study of language, the structure and origin; and finally the study of material remains, जो हम आज भी पढ़ते हैं. फिर his next tenet is about anti-racist science, and that's a key contribution, the first such allegations, first such challenge. So anti-racist science में बोअर्स ने कहा कि the biological determinism thing, the racist ideology, social Darwinism, it does not stand the scientific scrutiny. जैसे उस टाइम पे जो रेसिस्ट आइडियोलॉजी वो क्या कहती है, यही कहती है कि पर्टिकुलर रेस जो है, रेस 1 इज बेटर देन रेस 2. जो अमेरिकन जो हैं, वाइट रेसेस आर बेटर देन द ब्लैक वंस, द मिक्स रेसेस. सो यहाँ पे दिस बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म वाज चैलेंज्ड बाय फ्रेंच बोआ, who said that कि इंटेलिजेंस, बिहेवियर, कस्टम्स, मोरालिटी, या जितने भी जो नेसेसरी लाइफ प्रिंसिपल्स हैं, whether physical or biological, physical or cultural or intellectual, they do not depend on any particular race, biological race. जैसे यहाँ पे Boa, he studied the immigrant children in the US. फिर उस स्टडी से he arrived at this conclusion
कि जो स्कल फॉर्म है क्रेनियल इंडेक्स के, जो क्रेनियल इंडेक्स होता है इट इज लेंथ अपॉन ब्रेथ ऑफ क्रेनिया या स्कल। सो फर्स्ट स्टडी की जो स्कल फॉर्म जो है इट इज नॉट फिक्स बाय रेस, ये वेरी करती है। अगर ऐसा होता तो जो वाइट रेसेस हैं उन सब के जो स्कल जो है वो उनका इंडेक्स सेम होता। देन स्कल फॉर्म और रिजल्टेंट इंटेलिजेंस, जो उस वक्त के लोग मानते थे कि स्कल जो पर्टिकुलर रेस है, जो उनकी जो इंटेलिजेंस है वो दूसरों से ज़्यादा है। और वो दूसरों से ज़्यादा है यानी उन सब के अंदर जो भी कोशंट है, स्पेशली यहाँ पे हम क्रेनियल इंडेक्स की बात करते हैं जिसको वो कोशंट उस वक्त रख रहे थे, कि वो कोशंट जो है वो सारे वाइट्स के अंदर सिमिलर होगा। जैसे यही सेम जो है आप हिटलर के आइडिया में ले सकते हो, उसमें भी बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म था या सोशल डार्विनिज्म था। सो उसमें हिटलर ने कहा कि जितने भी ब्लू आइड नोर्डिक्स हैं, नाउ जर्मनी के अंदर भी वही डाइवर्सिटी हो जो हर एक पर किसी भी पीस ऑफ लैंड पूरी दुनिया में कहीं भी जो है वो डाइवर्सिटी रहेगी। लेकिन हिटलर ने कहा है कि जो ट्रू जर्मन्स हैं वो होंगे those who have possess blue eyes and are of Nordic origin। सो ये दोनों ही जो है बोगस क्राइटेरिया है, क्योंकि जो जर्मन है और उसके अंदर भी तो नॉन ब्लू आइज हो सकती है। कि हम समझ रहे हैं कि ब्लू आइज जो है द इनहेरिटेंस इट डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ पैरामीटर। और सिर्फ ब्लू आइज इसका इनहेरिटेंस मैटर नहीं करता। ये जो है ये डज नॉट सिग्निफाई कि ब्लू आइज है तो ही वो पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप का मेंबर होगा। तो सिमिलरली यहाँ भी यही चीज सामने आई कि अगर स्कल उनका जो अमेरिकन जो है उनका स्कल जो है बड़ा है तो उन सब के अंदर जो क्रेनियल इंडेक्स जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, बट उनके अंदर वही उतना ही वेरिएशन है जितना दूसरे दूसरे रेसेस में है। फिर जो स्कल फॉर्म या क्रेनियल इंडेक्स जो है इट you know it changes due to environmental factors like nutrition and living condition। और यहाँ पे जो बात की जा रही है क्रेनियल इंडेक्स की, इट इज स्पेशली अबाउट इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस हो गए या फिजिकल स्टेचर हो गया या ये जितने भी जो पैरामीटर्स हैं स्पेशली दोज आर एसोसिएटेड विद रेसिज्म, वो सब डिपेंड करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी परवरिश होगी, अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, तो हर कोई जो है वो सिमिलर ग्रोथ दिखाएगा। फिर ये जो है ये जो स्टडी है इसी के बेसिस पे ही लेटर रोट दिस बुक द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन। और उसमें भी फिर वही चीज बताई जो अभी यहाँ पे बताई है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है जितना भी, चाहे इंटेलिजेंट बिहेवियर है, द इंटेलिजेंट वन, द साइकोलॉजिकल वन, द स्पिरिचुअल वन, द मॉरल वन, ऑल ऑफ देम दे आर कल्चरली लर्न, दे आर नॉट बायोलॉजिकली इनहेरिटेड। And all human groups, whichever race, whichever biological race they belong to, they are equally capable of complex thought and cultural development। So यहाँ पे दो चीजें हैं। First, जितने भी aspects of human behavior है, especially it comes to intelligence and morality, दोनों के दोनों जो है they depend on culture। यही चीज यहाँ पे मिली है और यही चीज जो है later it was written down in this book। फिर बात करते हैं क्रिटिसिज्म्स एंड लिमिटेशंस की। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है दैट बोअर्स एंड स्टूडेंट्स दे फोकस हेवीली ऑन डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल कल्चर, क्योंकि दैट्स व्हाट हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म वाज एंड दैट्स व्हाट दे स्टूड फॉर। कि फर्स्ट जनरलाइजेशन चाहिए ही नहीं, उनको पर्टिकुलर कल्चर जो है उसकी स्टडी करनी है। और अगर उनका क्वेश्चन है कि कल्चर इवॉल्व कैसे हुआ, तो फर्स्ट दे नीड टू फिगर आउट, they need to point out कि किस कल्चर की वो बात कर रहे हैं। Let's say it is culture X, then फिर उस culture X की जो इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू उसको स्टडी करेंगे, then data first theory later, इस तरह से वो ऑब्जर्वेशन पे आएंगे। बट अल्टीमेटली इट इज अबाउट अ पर्टिकुलर कल्चर। सो उनके पास जो ब्रॉडर जनरलाइजेशन है ही नहीं। बट जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इवन इफ they did produce rich ethnographic records of various culture, individual culture, but कुछ चीजें जो है वो रिपीट होती है, like some patterns जो है they repeat across societies, क्योंकि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं या बेसिक प्रीमाइसेस हैं वो हर कल्चर में सेम है। like जो सोसाइटी है
आज हम नाइजीरियन सोसाइटी देखें या फिर केनियन सोसाइटी देखें या फिर हम स्कैंडिनेवियन देखें, साउथ एशियन देखें, अमेरिकन देखें, सब के अंदर जो बेसिक प्रीमाइसेस है सोसाइटी के वो तो सिमिलर है। यानी सिमिलर एक फैमिली होगी, जो बेसिक जो यूनिट है, मदर फादर एंड द ऑफस्प्रिंग। सो ये प्रीमाइस तो हर जगह सिमिलर है, ऐसा इसके अंदर वेरिएशंस कहीं भी नहीं है। फिर ग्रुप के अंदर उनकी लिविंग प्रैक्टिसेस में हो सकती है, बट जब बेसिक प्रीमाइसेस सेम है तो बहुत सारे कल्चर पैटर्न्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे सिमिलरली इस पिछले वाले लेक्चर में क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में जो मॉर्गन्स के जो जो क्लासिफिकेटरी सिस्टम है कि किस तरह से जो किनशिप टर्मिनोलॉजी है वो कई कई कल्चर में डिस्क्रिप्टिव है, कई कल्चर में वो क्लासिफिकेटरी है, यानी पर्टिकुलर कोई नाम है और कहीं कहीं पे ब्रॉडर नेम है। सो ये जो चीजें हैं ये हर कल्चर के अंदर रिपीट होती है। फिर यह है कि कोई भी कल्चर जो है, हाउ इट चेंजेस ओवर टाइम इन सिस्टमैटिक वे। क्योंकि अगर यही जो स्टडी है फ्रेंच बोअर्स की, कि उन्होंने पर्टिकुलर स्टडी की एक्स वाई जेड ए बी सी डिफरेंट पर्टिकुलर कल्चर की, बोअर्स और उसके स्टूडेंट ने अगले स्टडी की, उस कल्चर के बारे में उनको पता है। नाउ अगर वही उन सारे जितने दूसरे कल्चर्स हैं उन सबको एक साथ लाके उनके अंदर कोई पैटर्न्स अगर ढूंढते, then they might have arrived at some broader generalization. So that's what the allegation, or that's what the criticism is. Fair. The second criticism is overemphasis on uniqueness and differences. So यहाँ पे the idea was कि हर culture जो है it is relative, हर culture unique है and should be studied in isolation. Now इसकी वजह से जो यूरोसेंट्रिज्म है या एथनोसेंट्रिज्म जो है ये तो चलो ठीक है साइड पर हो गया। नाउ बट उसकी वजह से जो सिमिलैरिटीज जो हैं दे वर आल्सो डाउन प्लेड। नाउ द आइडिया इज कि अगर आपके दिमाग में वही है कि टू लुक फॉर द डिफरेंसेस, देन आपकी स्टडी जो है वो डिफरेंसेस ही जो हाईलाइट करेगी। द सिमिलैरिटीज दे विल बी मास्क्ड, दे विल बी हिडन। सो यही जो सेकंड जो क्रिटिसिज्म है उसी के बारे में है कि बहुत सारे कल्चर्स में सिमिलैरिटीज हैं, यही सेम जो है ऊपर भी है, द रिपीटिशन, बहुत सारे कल्चरल पैटर्न्स जो हैं वो रिपीट होते हैं, हर कल्चर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, दोनों सेम है। जैसे जो लेवाई स्ट्रॉस है, सो जो उन्होंने उसने कहा कि जैसे जो बेसिक प्रीमाइसेस अगर सेम है, लाइफ डेथ जो मदर फादर वाला दिया तो लाइफ डेथ में भी ले सकते हैं कि ये तो एक ऐसा सच है जिसको वो नकार नहीं सकते कि जो जिंदा है वो मरेगा। सो बहुत सारे, लगभग सारे कल्चर में आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, फ्रॉम पेलियोलिथिक टाइम टू द मॉडर्न सोसाइटीज, हर एक के अंदर बरियल प्रैक्टिसेस हैं। और यहाँ पे पेलियोलिथिक टाइम से तो पर्टिकुलर रेस बेसिस पे कोई था ही नहीं, पर्टिकुलर कल्चर स्पेसिफिक स्टडी तो थी नहीं, है ना, ये ब्रॉडर स्पीशीज लेवल स्टडीज थी। तो यहाँ पे जितने भी एविडेंस मिले हैं उस हर जगह पे बरियल प्रैक्टिसेस हैं। फिर केव आर्ट जो है या सम फॉर्म ऑफ आर्ट जो है वो हर जगह मिली है। फिर उसके बाद जो है जो ऑर्नामेंटेशंस हैं वो भी हर जगह मिले हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, सेम मेल फीमेल या जो कल्चर नेचर जो है, सो ऐसे बाइनरीज एग्जिस्ट करते हैं। सो वो बाइनरी जो है सिमिलैरिटीज, उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि अगर सिमिलैरिटीज पे ध्यान देंगे then we will arrive at the same observation which was given by the classical evolutionism, that is psychic unity of mankind, कि जितने भी कल्चर्स हैं if they face similar situations they will arrive at a similar conclusion। यानी जो मेंटल कैपेसिटी है, इन शॉर्ट कहें तो मेंटल कैपेसिटी ये सारे स्पीशीज की, सारे रेसेस की, सारे कल्चर्स की सेम है। सो यहाँ पे ये आइडिया जो है इट वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट द यूनिवर्सल मेंटल प्रोसेसेस, द यूनिवर्सल मेंटल कैपेसिटी ऑफ people across all cultures। And the next criticism is a technical one, even though Boas strongly advocated field work, but there are loopholes
such some gaps कि जैसे बहुत सारे जो फील्ड वर्क्स हैं they were undertaken by his students or local informants. So उसकी वजह से there are variations in quality and depth of research कि पर्सनल नहीं था. देन कि जो स्टूडेंट्स ने जो फील्ड वर्क जो किया था इट वाज डिस्क्रिप्टिव बट अ लॉन्ग टर्म इमर्शन वाज नॉट देयर. कुल मिला के द सब्जेक्टिविटी वाज देयर, टू मच सब्जेक्टिविटी ये कह सकते हैं. तो अगर आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आप लिखना चाहें तो ये जो है इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट दैट ऑथेंटिसिटी कि वेदर जो उनके स्टूडेंट्स ने जो फील्ड वर्क या एथनोग्राफिक रिकॉर्ड्स बनाए वेदर दे आर रिलायबल. एंड सेकंड, जितने भी फील्ड वर्क्स हैं स्टूडेंट्स वाले दे दे हैड दिस थिंग टू मच सब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी जो है यानी जो आउटसाइड ऑब्जर्वर है वो उन चीजों को एक नॉन बायस वे में रिकॉर्ड करे, वो चीज नहीं आई. खैर, फिर पीवाईक्यू इनसाइट्स की बात करते हैं. तो जैसे 2024 का क्वेश्चन है कि डिस्कस इसका हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म एज ए क्रिटिकल डेवलपमेंट टू द क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म. सो वो आपको बताया कि किस तरह से क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के जितने भी फर्स्ट ये जो ट्राई ऑफ स्टेजेस हैं कि 3 स्टेजेस में ही कल्चर इवॉल्व होता है. फिर जो ब्रॉडर जर्नलाइजेशन थिंग है, फिर जो सेकंड हैंड डेटा है, उन सब से तो जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म है इट वाज एन अपग्रेडेशन. फिर ये सिंपल क्वेश्चन है हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म एंड फ्रेंच बोअर्स. फिर ये कंपैरिजन को लेकर है डिफ्यूजनिज्म एंड इवोल्यूशनिज्म उनको लेकर, या फिर सिमिलरली क्वेश्चन जो है वो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का किसी और कल्चर से किसी और थियरी से हो सकता है. फिर then the question is to critically examine the historical particularistic approach of Franz Boas. So यहाँ पे when it is critical examination तो आपको दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजें जो है उस पर रखनी है. यानी क्रिटिसिज्म इसलिए आप मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप उस चीज को दोनों तरीके से देखें. एंड फिर कुछ या अदर यूनिवर्सिटीज के और ग्लोबल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन देख के कुछ स्पेकुलेटिव इनसाइट्स भी डाले हैं जो आपके लिए काम के हैं, जो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी. देन इसके अलावा इफ समथिंग कम्स अप, इफ यू वांट इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ चीज सामने आए, just drop the comments or engage into the community section. This is it. Thank you very much.